Hey guys, welcome back to the channel. So we are now in Aurangabad today. So today is the plan to explore. You must have heard of Ajanta and Ellora caves. So वहाँ पे हम जाने वाले हैं आज Ellora caves पे और along with that we are going to visit Devi ka Maqbara also, which is also called as mini Taj Mahal. So ये दोनों प्लेसेस आज हम देखने वाले हैं और कल पॉसिबल हुआ तो कल हम देखने वाले हैं दौलताबाद विच इज़ वन ऑफ द फोर्ट्स, एंशियंट फोर्ट्स. सो अगर पॉसिबल होगा, टाइम मिलता है तो कल हम वो विज़िट करने वाले हैं. सो राइट नाउ वी आर लीविंग औरंगाबाद टू एलोरा केव्स. इट्स अप्रॉक्स 11 AM इन द मॉर्निंग. तो अभी हम उसकी तरफ निकल गए हैं. इट्स अबाउट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद, approx 150 kilometers from Pune and 200 to 20 kilometers from Mumbai. So this is one of the oldest caves in India. Some of them are from different cultures. One is Kailash Leni, जो हिंदू कल्चर के बेस पे है, और rest of the caves are Buddhist caves. So I'm going to show you all those stuff today. What was the history of it? I'm going to explain that also. So if you do like this video guys, please do like, share and subscribe. I'll show you the places in a while, and today I'm carrying my drone also. So yeah, I'll be seeing a lot of amazing views from the top. See you guys down there then. 10 kilometers from Aurangabad there is a right turn. As you can see, this is Nashik highway. From Nashik highway you need to take a right turn towards Dhule highway. And on that road itself you'll see this caves, and on the left side also we'll be able to see the Daulatabad fort also, but we are not going to visit that today. So now we have taken the right turn. We are going towards Ellora caves. On this way you'll see a lot of mountain ranges. It's not Sahyadri mountain ranges. I think it's Gotala or something like that. These are the mountain ranges wherein the caves are based. So it's been an amazing journey till now. I'll take you through all those places. I'm traveling solo this time also. It's not that far from my hometown. It's about 2 to 3 hours journey. So I decided to explore some new places. I have not visited this place ever in my life. This is my first time I am going to any of the ancient caves. So it's pretty much interesting till now. So right now we have reached at the Ellora Caves parking. This village is also called as Verul in Maharashtra. So it took approx 45 minutes from Aurangabad to reach over here. So right now we are at the entry gate of Ellora Caves. There is a token counter here also. And the entry fee is pretty less. It's 40 per person, and it's kind of a token entry gate when you are given a token and then you pass through the gate. Until unless you have the token you won't be able to enter, and you have to carry that token and return it also. In case you miss that out, you'll be fined I think 200 rupees for that. So these are number 16 caves, कैलाश लेनी, और वहाँ पे 10 और 12 नंबर का केव है, और यहाँ इस साइड पे 25, 17 I think or 21. So that side it's Jain caves, this one is Hindu caves, that is Kailash Leni, or that side it's Buddhist caves. So it takes a full day to go to each and every cave and explore them. So in case you have less time, just ask the guides which all caves to cover, और उतने ही caves cover करो, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि हर एक cave देखने के लिए बहुत टाइम लगता है. So अभी first we are going to explore the Kailash cave, which is the main and the biggest cave. So right now we are entering Kailash cave. So this is at the center, and this is one of the biggest, I think, here. So right now we are entering the cave.
So this cave is also called as 16 number cave. इसको 16 नंबर केव कहा जाता है, 16 नंबर की गुफा। और हर केव के बाहर, हर गुफा के बाहर उसके नंबर्स दिए गए हैं। So whenever you take a guide or you ask when you have less time, you ask that which all caves to cover, they'll tell you by numbers, और वो नंबर देख के आप वहाँ पे अंदर जा सकते हो इनकेस आपके पास बहुत कम टाइम है। So this is the Kailash cave. This is the biggest excavation I think ever in the world. So if you read the history even on a Wikipedia page, you'll get to know that ये सबसे बड़ी जो खुदाई की हुई है या फिर डेकोरेशन या फिर जो यहाँ पे आर्ट दिखाई देगा आपको, बहुत ही यूनिक है। और आई थिंक 700 CE उस टाइम के दौरान ये किया गया है। सो दिस एक्सकवेशन इज़ डन ड्यूरिंग दोज ईयर्स विच इज़ वेरी वेरी ओल्ड, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सकवेशन इन द एंशिएंट ईयर्स, इन द एंशिएंट टाइम्स। सो जैसे कि आप देख सकते हो, आप दिस इज़ द फर्स्ट केव दैट वी आर गोइंग इनसाइड। और यहाँ पे नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी और नॉट, बट बहुत अंधेरा था, बट आई एम enabling the night mode over here so that you'll be able to see what all is there. तो यहाँ पे थोड़ा इको आ रहा था। सो जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अलग स्ट्रक्चर है। आई थिंक ये बैठने के लिए दिया गया है, और आई थिंक उस टाइम पे बहुत सारे लोग बारिश के वक्त या फिर सोने के लिए यहाँ पे आ जाते थे। और जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही अलग स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द हिंदू कल्चर। दिस इज़ हिंदू बेस्ड केव। एंड जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे हो, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस दिखाई देंगे आपको, एंड दीज आर प्रिटी यूनिक डिज़ाइंस। इफ यू सी every picture that is designed over here, it's pretty different, pretty unique. So ये इसको कहा जाता है स्तंभ। ये बहुत ही पुराना स्तंभ है जो आई थिंक 600 ईयर्स के तब डेकोरेट किया था। So this is one of the largest rock out Hindu temple cave complexes in the world, and this is also UNESCO World Heritage Site, which is in Maharashtra. So this features also the largest monolithic rock, जो मैंने अभी कहा स्तंभ जिसको बोला जाता है, वो it is one of the largest, or I think the largest single monolithic rock excavation in the world. So which is based on, I think this monument is dedicated to Lord Shiva, also called as Kailash temple. So as you can see over here, all the sculptures are depicting the gods and goddesses which are found in Hinduism, and rest of the caves that we are going to see in a while are based on Buddhism and Jainism. सो हिंदुज़म के बेसिस पे ये जो आप देख रहे हो नक्शी काम या फिर जो भी ये रॉक पे एक डिज़ाइन बनाया गया है, ये बहुत बहुत अलग तरीके का है। इफ यू सी एवरी डिज़ाइन ओवर हियर, इट डिपिक्ट्स अ स्टोरी, it explains a story. If we go ahead and see each and every, you'll see that one god is telling a story to goddess, or maybe if you see that in detail, so pause the video and see these images in detail. You'll definitely be able to guess what will be the story behind it. So I think ये काली माँ का स्टैचू या फिर देखो ये डिज़ाइन लग रहा है। ये आई थिंक धनुष पकड़े हुए एक गॉडेस, एंड ये मशाल होगी। ये बहुत सारे डिफरेंट आप पॉज करके देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि हर एक जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग ही स्टोरी डिपेक्ट करता है। सो एवरी ऑफ दिस स्टैचू डिपिक्ट्स अ डिफरेंट स्टोरी, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट इट इन डिटेल। ऑल्सो आई थिंक उस टाइम पे बहुत सारे एलिफेंट्स हुआ करते थे, तो आई थिंक डिज़ाइन भी वैसे तरह से बनाया गया है। तो अ लॉट ऑफ स्टैचूज आर ऑफ एलिफेंट्स which is just around the temple.
And here is the other side of this cave. We came from that side and now we are here while going back towards the entrance. So as the guides tell you, it took around 200 years to excavate this kind of designs, and honestly, I mean, if you see this in detail at that time without any machinery, this will definitely take so much of time, but it's really commendable that at such times they have done such kind of art, so which is really, really amazing. यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आई थिंक लायंस का, एलिफेंट्स का या फिर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का दिखाई देगा डिज़ाइन किया हुआ। और ये पूरा रॉक है, पूरा हिल से पूरा नीचे तक वो बहुत काम करके आए हैं, इतना खुदाई किया है। और आई थिंक उस टाइम पे ये सब बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ होगा, बट स्टिल दे मैनेज टू डू इट। एंड एज यू कैन सी दिस such heritage style sites are still there. They've maintained this, and this comes under archaeological survey or something that of sort, वो institution है I think government का, तो उसके अंडर आता है, and they maintain it. दिस इज़ रामायणा पैनल। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं जो पूरा रामायणा डिपिक्ट करते हैं, रामायणा की स्टोरीज। सो और आप देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे कवर किए होंगे पूरे रॉक पे, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे उन्होंने कार्व किया है रॉक। सो दिस इज़ दैट मोनोलिथ that I was talking about previously in the video. So there are different shrines over here which are carved out of the same rock, and I think these are dedicated to all the rivers, young Ganga, Yamuna, Saraswati, and also different avatars of Vishnu and other Vedic gods and goddesses. So including I think Indra, Indradev, and Agni Dev, Vayu Dev, Surya Dev, and Usha Dev. एक केव लेफ्ट साइड पे है जो मेन केव के लेफ्ट साइड पे है, विच इज़ हैविंग आई थिंक गणेशा's टेम्पल ऑल्सो। अभी आप देख रहे हो तो उस राइट साइड पे है, बट कैलाश केव के लेफ्ट साइड पे इफ़ यू कम फ्रॉम द एंट्रेंस। So right now we are done with Kailash, which was the biggest cave, and now we are going towards the top of this cave and show you how this was carved right from the top. And as you can see, this is whole hill and they have carved it from top to bottom, और यहाँ से आपको पूरा पिक्चर आ जाएगा। So you can imagine why it took 200 years to carve this such kind of thing. तो 200 साल क्यों गए होंगे ये इतना पूरा यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए। तो आपको यहाँ से एक व्यू मिल जाएगा ऊपर से। तो ये व्यू दिखाने के लिए मैं ऊपर आया हूँ। मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाहता था, बट दिस इज़ नॉट अलाउड बाय दिस आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस और कैन बी एनी रीज़न, बट यहाँ पे ड्रोन्स अलाउड नहीं है। यू कैन यूज़ योर कैमराज बट not drones, because I think इसका डिज़ाइन ही पूरा अलग है और आई थिंक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो आई थिंक बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते होंगे which have come from the top, and let's go to the top and वहाँ से एक पूरा बेटर व्यू मिल जाएगा पूरा। सो आई थिंक यहाँ पे बारिश पे बहुत ही मस्त लगता होगा, क्योंकि आई थिंक ऊपर से थोड़ा छोटे छोटे झरने और पानी गिर रहा होगा, और उस टाइम पे
आई थिंक ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, बट आई थिंक यू शुड कम एट सच टाइम ओनली, जब बारिश के टाइम पे, जहाँ पे आपको बहुत सारा अलग नज़ारे देखने मिलेंगे, बहुत सारे वाटरफॉल, स्मॉल स्मॉल वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द टॉप, नाउ वी कैन इमेजिन कितना कार्व किया होगा उस टाइम पे. जैसे कि आप स्ट्रेट अवे डाउन देखोगे तो पूरा टेम्पल उसके कार्व करने के बाद बनाया होगा, उस पर डिज़ाइंस एंड केव्स ऑल्सो. सो उसको इतना ज़्यादा टाइम गया होगा. और आप टॉप के डिज़ाइंस भी देख रहे होंगे, आई थिंक एंशियंट टेम्पल्स की तरह ही है, एंड विच इज़ स्टिल स्टैंडिंग. सो यू कैन इमेजिन हाउ what kind of efforts they have taken and how they have carved this. It's really commendable. और ये कैमरा में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट सच में देखने में ये इतना बढ़िया है. इफ़ यू आर अ हिस्ट्री लवर एंड you like to explore such ancient places, then it's a must visit place. So यहाँ से आपको पूरा पैरानॉमिक व्यू मिल जाएगा. पूरे वहाँ पे जो प्लेटू है वहाँ का पूरा आपको व्यू मिल जाएगा पूरे हिल साइड से. और यहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हो अप द हिल, जहाँ से आपको आई थिंक लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे इन केस यू आर अ हाइकिंग पर्सन. सो ये थोड़ा रिस्की भी है यहाँ पे, सो बी वेरी केयरफुल while taking photos. So we'll go towards that side also to show you how it looks from that end, from exactly the top, and वहाँ से पूरा straight view मिल जाएगा आपको. एंड एक छोटा टेम्पल हुआ करता था, आई थिंक शिवा टेम्पल. तो यहाँ पे आई थिंक जो अभिषेक वगैरह करते होंगे. सो यहाँ पे हम आए, आई थिंक यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा, स्ट्रेट व्यू कैसे टेम्पल दिखता है और क्या क्या डिज़ाइंस है और कैसे कार्व किया हुआ है. आई थिंक ऑन अ सेकेंड लेवल ऑल्सो. So the next cave to explore is cave number 15, which is also based again on Hindu culture, called as the Shavdara Ellora temple. And we have, I think, the Vishnu's statue over here in this cave. So ये भी ये हिंदू के डिज़ाइन के बेसिस पे बनाया गया है. So हिंदू गॉड्स के डिपिक्शंस एंड डिफरेंट हिंदू स्टैचूज आर देयर. और जैसे कि आप देख रहे हो, आई थिंक टेम्पल है एट द एंट्रेंस, बट you can imagine at those times also they have two-story building kind of a structure at that time which was carved. और जो I think आज के जो बिल्डिंग्स रहते हैं, पिलर्स रहते हैं, उसके टाइप ही दिखता है, बट उस टाइम पे ये बनाना बहुत ही कमाल चीज़ है. मतलब उस टाइम पे बनाना ये और तब इमेजिन करना आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा. सो ये वी आर गोइंग इनसाइड द टेम्पल नाउ. तो यहाँ पे दे कॉल्ड इट एज आई थिंक दशावतारा एलोरा टेम्पल. तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है. आई नो दिस लुक्स प्रीटी न्यू, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स है अभी. नॉट श्योर इफ द मॉडिफिकेशन इज डन रिसेंटली. तो यहाँ पे सेंटर पे आपको एक स्टैचू दिखाई देगा, आई थिंक व्हिच डिपिक्ट्स अ काऊ और अ बुल. सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस देखने मिलेंगे. और यहाँ से पूरा पैरानॉमिक व्यू दिखता है फ्रॉम द सेकेंड लेवल. सो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग डिज़ाइंस देखने मिलेंगे. अगेन दोज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कैलाश टेम्पल, द कैलाश लेनी. एंड यहाँ पे अंदर आने के बाद बहुत अंदर है, बट यहाँ पे आई थिंक एक शिव का पिंड है जो आपको थोड़ा फ्लैश लगा के मैं आई एम ट्राइंग टू शो यू. बट यहाँ पे हैज़ लॉट ऑफ डार्क वॉज देयर, सो आई कुड नॉट शो यू दैट. बट आप ब्राइटनेस बढ़ा के एक बार देख सकते हो.
सो वी आर गोइंग बैक नाउ एंड जहाँ पे पिंड है वहाँ से हम इस साइड जा रहे हैं और अभी ये सेकंड फ्लोर से आपको कैसा व्यू दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो द नेक्स्ट वन इज़ केव नंबर 14, गुफा नंबर 14। सो यहाँ पे भी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द हिंदू केव्स अगेन। So this cave is called as Ravan Ki Khai, and again this is one of the Hindu caves. I think on the right side of the Kailash, this is the last Hindu cave, and from here on the right side the Buddhist caves will begin. And यहाँ पे भी आपको different sculptures या फिर different designs देखने मिलेंगे। तो ये बहुत छोटी केव है जैसे देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर केव्स। और यहाँ पे भी जैसे कि हर केव में एक अंदर जैसे पिंड था शिव का। और सो दिस केव वाज कन्वर्टेड फ्रॉम अ बुद्धिस्ट विहारा विच वाज आई थिंक अ बुद्धिस्ट केव बिफोर। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक ह्यूज पिलर्ड कोर्टयार्ड है एंड एक मंडप भी है विथ 16 पिलर्स कॉल्ड एज कुंभावली पिलर्स एंड a shrine containing a linga with a wide प्रदक्षिणा पथ उसके अराउंड है। So next are the Buddhist caves. Here they start from number 11. So yeah, I think first Buddhist caves है on the right side of Hindu caves. So यहाँ पे आप जैसे कैमरा में देखते हो this is the one of the holiest places for Buddhist people. So बहुत सारे आपको यहाँ पे white dress में दिखेंगे लोग। So जैसे कि आप कैमरा में देख रहे हो ये this is 3-story building जो कि उस टाइम पे बांधना वहाँ पे बिल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। बट आपने बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स देखे होंगे इससे पहले, बट ये ऐसा केव आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो उसका, हर गुफा के एंट्री पे हिस्ट्री उसका लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कैमरा में मैंने दिखाया, आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जैसे कि हमने अब तक देखा है हर केव के अंदर सेंटर में एक स्टैचू होता था। यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आप इफ़ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस देन दिस केव इज़ अगेन वन ऑफ द मस्ट विजिट केव हियर। सो यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है अंदर, बट डेफिनेटली ही कैन गो इनसाइड। देयर इज़ नो नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, और डर लगने की कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टैचूज दिखेंगे बहुत ही अलग अलग, जो देख के आपको बहुत ही मस्त लगेगा। और ये एक बालकनी टाइप का है 3-story बिल्डिंग के साइड में ही। और यहाँ पे आई थिंक ये गुफा में लोग रहते होंगे आई थिंक गर्मी के टाइम पे जब बहुत ही हवा चलती होगी। सो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ते हैं और डेफिनेटली डू गो ऑन ईच ऑफ द फ्लोर बिकॉज एवरी फ्लोर हैज़ डिफरेंट डिज़ाइंस। और आपने अगर बुद्धिस्ट केव्स इससे पहले विज़िट की होंगी तो यहाँ पे बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। सो इफ़ यू आर अ योगा पर्सन, इफ़ यू आर अ मेडिटेशन पर्सन, टू कम ओवर हियर एंड स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो यहाँ से अगेन पैनोरामिक व्यू मिलता है। सामने जो सीन है बहुत ही मस्त है। सो यहाँ पे एंट्री के वक्त ही अगेन बुद्धा का एक स्टैचू है बिफोर गोइंग टू लेफ्ट एंड सीइंग द मेन स्टैचू। तो आई थिंक यहाँ पे जो सभा भरती होगी या फिर जैसे कि मीटिंग्स वगैरह होती होंगी उस टाइम पे, तो तब आई थिंक प्रेयर्स के लिए लोग आते होंगे यहाँ पे, या फिर मेडिटेशन करने के लिए आते होंगे। सो बहुत सारे आपको ऐसे सेक्शंस दिखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू के पहले। सो आई थिंक ये गैदरिंग प्लेस रहता होगा जहाँ पे सब लोग मिलते होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द केव नंबर 10 विच इज़ अगेन अ बुद्धिस्ट केव। एंड यहाँ पे आपको एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा। आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड एज कारपेंटर्स केव, जहाँ पे आपको बहुत ही अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वहाँ पे पूरा कार्व किया हुआ है और यहाँ से ऊपर से रोशनी भी जाती है अंदर। जो आपको होल दिख रहा है वहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तो जैसे
कि आप अभी देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है और डिज़ाइन काफ़ी अलग है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर केव्स दैट वी हैव सीन टिल नाउ। तो डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न दिखता है इसका, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज कारपेंटर्स केव, कि बहुत ही ध्यान दे के बनाया गया है इसको, और बहुत ही जैसे कि आपने आई थिंक चर्चेस में देखा होगा या फिर अलग अलग जगह देखा होगा कि ऊपर सर्कुलर ऐसे ये कार्व किया हुआ है। और आई थिंक इसका कुछ तो ताल्लुक है रोशनी आने और रिफ्लेक्शन के लिए, जस्ट फॉर इंक्रीजिंग दैट लाइट एंड गेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग इट टू एवरी सिंगल डायरेक्शन इनसाइड द केव, तो उसके लिए। और ये जो मैं बोल रहा था बुद्धा का स्टैचू, ये सबसे बेस्ट स्टैचू है यहाँ पे फ्रॉम ऑल द केव्स। और यहाँ पे रोशनी भी बहुत आती है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर केव्स, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्लैश लगा के देखना पड़ता है, बट यहाँ पे बहुत ही मस्त नज़ारा मिलता है। और यहाँ से मैंने ड्रोन का व्यू लिया था, बट अगेन आई कुड टेक इट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर दे आस्क मी टू टेक इट डाउन, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है एज इट इज़ अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत ही मॉडर्न टाइप का ये दिखता है, और बहुत ही जो फाइन डिटेल में किया हुआ कार्व किया हुआ चीज़ दिखता है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कारपेंटर्स केव। सो ये थोड़ा छोटा केव है बट बहुत ही अलग डिज़ाइन किया और बहुत ही फाइन डिज़ाइन है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ विश्वकर्मा केव। आई थिंक दिस इज़ अलॉन्ग विद द केव नंबर 10 ओनली, बट इसको आई थिंक विश्वकर्मा केव कहा जाता है। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा झरना चालू रहता है, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ राइट साइड ऑफ द केव्स, बट देयर आर लॉट मेनी केव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैलाश लिनी। सो अभी हम यहाँ पे अंदर जाएगा, जैसे कि मैंने कहा छोटा झरना यहाँ पे आता है, और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता होगा यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे झरने रहते होंगे यहाँ पे। अभी एज दिस इज़ द विंटर सीजन बहुत कम फ्लो है पानी का। तो यहाँ जैसे कि आप अंदर जाते हैं आपको दिखेगा यहाँ पे कि जैसे हमारे अभी स्टेयर्स रहते हैं वैसे ही ऑलमोस्ट है, बट तब डिज़ाइन किए हुए हैं और तब कार्व किए होंगे। और जैसे ही आप अंदर जाते हैं यहाँ से अगेन आपको डिफरेंट व्यू मिलता है, यहाँ से हाईवे बहुत ही पास है। तो लेफ्ट साइड में आप स्ट्रेट देखोगे तो वो हाईवे ही है उस साइड। Again, this is also one of the Buddhist caves and this is cave number 5 and यहाँ पे आप पॉज करके इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हो। सो गुफा नंबर 5 में भी सेम आई थिंक सेक्शंस दिखेंगे आपको, लेकिन ये वर्टिकल है। लास्ट केव में वो हॉरिजॉन्टल थे। सो यहाँ पे भी अगेन बुद्धा का एक स्टैचू है अंदर, आई थिंक फॉर मेडिटेशन फॉर प्रेयर्स लोग यहाँ पे आते होंगे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट केव्स एंड होते हैं। तो दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द राइट साइड ऑफ द एलोरा केव्स। तो यहाँ पे आके आप देखोगे तो छोटे छोटे सेक्शंस है यहाँ पे अंदर, और इन एवरी सेक्शन आई थिंक दे हैव क्रिएटेड दिस सेक्शन फॉर डिफरेंट हाउसेस और डिफरेंट क्या बोल सकते हैं फैमिलीज के लिए। एंड दिस इज़ द लास्ट केव दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे थोड़ा ही ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे अंदर थोड़ा अंधेरा रहेगा, बट इसका भी थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है। एंड दिस इज कॉल्ड एज गुफा नंबर 2, केव नंबर 2। एंड अगेन यू कैन पॉज हियर एंड रीड अबाउट दिस बुद्धिस्ट केव। सो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको डिफरेंट डिज़ाइंस देखने मिलेंगे जो अभी लास्ट 2 केव्स में नहीं थे, बट ये केव गुफा नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर केव्स जो हमने लास्ट 2 केव्स देखे हैं बुद्धिस्ट केव्स। सो ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पे स्टैचूज़ जो डिज़ाइन किए हुए हैं वो छोटे छोटे डिज़ाइन किए हुए और बहुत ही अलग है। और यहाँ पे रोशनी थोड़ा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 2 केव्स, और यहाँ पे आपको बेटर व्यू मिल जाएगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ ऑल द केव्स एंड नाउ वी आर गोइंग बैक ऑन द एंट्रेंस, ऑन द एंट्री गेट। आई हैड ओनली
2 hours to explore this place. I had to return to one more place, which I'll be showing in the next video. So I could cover as much as I could, और बहुत सारे caves cover कर लिए मैंने, लेकिन right side के caves ही cover हो पाए, which were mix of Hindu caves and Buddhist caves. But I had to cover uh, Jainism based caves also, but I could not. महावीर caves और जैनिज़्म के बेस पे जो केव्स बनाए गए हो, जो लेफ़्ट साइड पे है, और एक गणेशा टेम्पल भी है लेफ़्ट साइड ऑफ द कैलाश लेनी, तो वो मैं आज कवर नहीं कर पाया. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल विजिट दिस प्लेस आई विल डेफिनेटली कवर all of those remaining caves for sure, and I'll show you in the next videos. So मैंने वो भी सुना है कि वहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे केव्स है और बहुत सारे ऊपर भी केव्स है अप द हिल जो बनाए गए हैं, जो अगेन एज दोज आर बेस्ड ऑन जैनिज़्म, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके डिज़ाइंस बहुत अलग थे. सो वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मैं. और वहाँ उस साइड पे लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है अलॉन्ग विद द केव्स, सो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग रहेगा. But definitely I'll visit this place once again back in my life. So if you like this video, please do like, share and subscribe to the channel.